Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture, we have saw about varieties of games, where we have saw many types of games and its varieties. Where we have saw muscle building and strength games like hanging on the bar, swinging with the help of rope, hanging on the rope of a banyan tree, then throwing the ball and hopping. Then we have saw its benefit is increased fitness and enhanced sports performance. Then we have done an activity where we have been asked a question to list the different games played with a ball and write which muscle does it help in building and strength. So we have wrote throwing the ball with hands and football, that is legs. Then we have saw flexibility enhancing games where we have saw two types, that was making a curve of the body and stretching the leg. Then we have saw its benefit, that was healthy growth and development. Then again a activity was been asked where one question was been asked, that was pose like a superhero and write about the different muscles being strengthened. So we have wrote stretching hands back, that is hands, and bending down, that is waist. Then on page number 67 we have saw games of coordination. So we have saw six types of the games where we have a coordination. So first was twist and pass the ball, where hand coordination is there. Then cycling, where eyes and leg coordination is there. Then target, where eye hand and eyes coordination is there. Then catching the ball, where hand and eyes coordination is there. Passing the ball, where hand coordination is there. And football, where eyes and leg coordination is there. Then we have saw benefit of it, where we have saw enhancing memories, learning, concentration and thinking speed. Then we have saw speed games. In speed game we have saw running race, where we have to encourage children to participate in dribble the ball relay, 100-meter race, hula hoop and run relays. Then we have saw benefit of it, where it improves brain speed and coordination. Then on page number 68 we have saw balancing games. In that we have saw five types of balancing games. First was T balance, second was book balancing, third was lemon and spoon, fourth one was balancing beam, and the last one was walking on the bricks. Then we have saw benefit of it, that was increasing confidence. Then students, we have done an activity where we have been told to identify the smiley face and to color it. So we have identified three types of smiley face and we have colored. So these all things we have studied in our previous lecture, that was varieties of games. So I hope you have understood it. So this was just a recap of our previous lecture. Now students, in today's lecture we are going to see the new topic. So students, are you ready? Very good. So without wasting our time, let's begin with a new topic. So kindly open your EVS combined book. तो आपकी EVS की combined book खोलो, पेज नंबर 68. So here today we are going to see two topics. आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स देखने वाले हैं. So first open your EVS combined book and remove page number 68. So student, are you ready with your books? Okay. So first we will see first topic, then second we will see other topic. So are you ready? Okay. So let's begin. Okay. First topic, that is race. Race. So what is mean by race? RACES. Race. Race मतलब क्या? रेस यानी जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करते हैं, एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं, शर्यत लगाते हैं, उसे हम रेस कहते हैं. जैसे हम कभी कभी कहते हैं हमारे फ्रेंड्स को, चलो हम रनिंग का रेस लगाते, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दौड़ने का रेस लगाते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ. कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं चलो हम स्किपिंग का रेस लगाते हैं. यहाँ पे स्किपिंग का कैसे रेस होगा, तो कौन ज़्यादा स्किपिंग करता है और कौन अंदर रुकते है वो हार गए, और कौन ज़्यादा करते वो जीत गए. सो यहाँ पे रेस रहता है स्किपिंग का. सो लाइक दिस हम वैराइटीज ऑफ रेस हमारे फ्रेंड के साथ या हमारे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ या स्टूडेंट्स जो भी हमारे क्लासमेट है उनके साथ रेस लगाते हैं.
इसे ही हम रेस कहते हैं। फिर वो रेस में अलग अलग गेम्स आ सकते हैं, जैसे रनिंग रेस आ सकता है, वॉकिंग का रेस आ सकता है, फिर पासिंग का रेस आ सकता है। तो अलग अलग टाइप के रेस हम लगा सकते हैं, उसे ही हम रेसेस या रेस कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है अ कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टूडेंट जजिंग हु इज द फास्टेस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई कंपटीशन है, तो यहाँ पे हम जज करते हैं कि कौन सबसे पहला कंप्लीट करेगा, कौन सबसे फास्ट हो जाएगा। ये जो टास्क है या ये जो कोई कंपटीशन है, वो सबसे फास्ट या सबसे फर्स्ट कौन कंप्लीट करता है वो जीत गए। तो यहाँ पे हम रेस लगाते हैं, यहाँ पे हम जज करते हैं। यहाँ पे हम दो कॉम्पिटिटर में या दो ग्रुप में जज करते हैं, उसे ही हम कंपटीशन कहते हैं या रेस कहते हैं दोनों के बीच में। सो दैट इज मीन बाय अ रेस। सो a competition between students judging who is the fast is known as race. So I hope you have got it what is mean by race. Okay, now student, in your EVS combined book on page number 68 they have given 4 types of race. यहाँ पे उन्होंने 4 types of race दिए। बहुत सारे रेस रहते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने खाली 4 हमें रेस के नाम दिए, तो वो हम 4 रेस देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट रेस इज स्कीपिंग रेस। स्कीपिंग, तो मैंने आपको जैसे अभी बताया, एग्जाम्पल दिया। स्कीपिंग रेस यानी यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को या स्टूडेंट्स को स्कीपिंग करने के लिए बोलते, और जो एंड तक स्कीपिंग करते ही रहता है, एंड तक वो जो सबसे ज़्यादा टिकने वाला है या सबसे ज़्यादा लास्ट तक रहने वाला है स्कीपिंग करते समय, वो ही विनर हो जाता है। सो स्कीपिंग रेस, यहाँ पे उन्होंने पिक्चर में आपको दे रहा होगा कि एक लड़की है और एक लड़का है, वो दोनों स्कीपिंग करे, उसमें से जो लास्ट तक स्कीपिंग करते रहेगा वो विनर होगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच स्कीपिंग की रेस है। ओके, नाउ सेकेंड पिक्चर। इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी दैट इज रनिंग बैकवर्ड। तो यहाँ पे भी रनिंग बैकवर्ड रेस है। तो रनिंग बैकवर्ड रेस कैसी रहती है, तो यहाँ पे आपको आगे देख के नहीं दौड़ना है, तो आपको आपकी बॉडी आपको पीछे देखना है, यानी आपकी बॉडी को आगे रख के आपको दौड़ना है। सो दैट इज बैकवर्ड रेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हम रनिंग रेस नॉर्मल रेस रहते हैं, वहाँ पे हम सीधे खड़े होके दौड़ते, पर यहाँ पे आपको उल्टा खड़ा रहना है, आपको पीठ को दिखाना है और वैसे आपको दौड़ना है। सो दैट इज कॉल्ड एज रनिंग बैकवर्ड। यू कैन सी इन द पिक्चर, जो 2 लड़कियां हैं उन्होंने अपनी बैग को पीछे किया है और वो बैग आगे नहीं देख रही, वो पीछे देख के दौड़ रही है, यानी वो बैक रेस कर रही है, मीन्स रनिंग बैकवर्ड। सो दैट इज नोन एज रनिंग बैकवर्ड रेस। तो ये भी एक टाइप का रेस है, उसे हम रनिंग बैकवर्ड रेस कहते हैं। ओके, नाउ थर्ड पिक्चर इज फास्ट वॉक। फास्ट वॉक यानी क्या, तो यहाँ पे आपको फास्ट चलना है, पर फास्ट चलते चलते आपको दौड़ना नहीं है। अगर आप दौड़ना चालू किया तो वो रनिंग रेस में हो जाएगा, पर फास्ट वॉक यानी आपको बहुत सारा फास्ट चलना है, यानी आपको जो पैर है वो आपको बहुत बड़े बड़े लेके फास्ट चलना है, आपको यहाँ पे दौड़ना नहीं। अगर आप दौड़ना चालू करेंगे तो वो रनिंग रेस में जाएगा। फास्ट रेस यानी आपको बहुत फास्ट चलना है, उसे ही हम फास्ट रेस कहते हैं। तो ये भी एक टाइप का रेस ही रहता है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक लड़की और एक लड़का फास्ट चल रहे, वो दौड़ नहीं रहे तो फास्ट चल रहे, उसे ही हम फास्ट वॉक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन फास्ट वॉक दे स्टूडेंट वॉक फास्ट, दे डोंट रन, दे वॉक फास्ट। एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट गर्ल एंड बॉय इज walking fast, they are not running, they are walking fast. So this game is known as fast walking. And the last picture is duck walk. जो लास्ट का पिक्चर है वो कौन सा वॉक है, डक वॉक। डक वॉक क्या है, सो डक वॉक भी एक टाइप का रेस है, जैसे फ्रॉग जंप रहता है वैसे ही डक वॉक भी एक टाइप का रेस है। तो ये डक वॉक में क्या करते हैं, हमें नीचे बैठना होता है और हमारे वेस्ट के ऊपर हमारे दोनों हाथ को रखना है, और फिर बैठने के बाद हमें वैसे ही जंप करना है, वेस्ट पे हाथ रख के हमको जंप करना है। जिस प्रकार डक चलते हैं वो भी जंप करते करते चलती, उसी प्रकार हमें जंप करते, पर उनका जंप जो रहता है वो हाई जंप नहीं, उनका लो जंप रहता है। फ्रॉग जैसे जंप करते वो अलग है। डक वॉक में डक वॉक टाइप जंप करते, वो कैसे फास्ट वॉक टाइप जंप रहता है वैसे करते। तो आपको भी डक वॉक में वैसे उसी तरह से
आपको आगे बढ़ना है। सो ये डक वॉक भी एक टाइप का वॉक है जो एक रेस का पार्ट है। सो दिस इज डक। सो स्टूडेंट्स, in this topic, in race topic, we have saw what is mean by race. Then we have saw a competition between students judging who is the fastest. Then we have saw 4 types of race. First was skipping race, second was running backward race, third was fast walking race, and fourth one was duck walk race. So I hope you have understood about this first topic, that was race. Okay students, now students, we have finished with this first topic, that was race. Now we will move to a next topic. So I hope you have understood this race topic. Okay, so now students, kindly open your EVS combined book page number 69. So we will move with our next topic. So please kindly open your EVS combined book page number 69. So on page number 69 we are going to study with next topic, that is minor game. What is mean by minor games? Minor games are those which require minimal sport equipment and can be played almost anywhere. This game do not need a formal playground or condition. तो माइनर गेम यानी क्या? माइनर गेम इस प्रकार का गेम है कि जो कहीं भी खेला जा सकता है, छोटी जगह पे, बड़ी जगह पे, जो भी जगह अवेलेबल है, घर के अंदर, घर के बाहर, जो भी प्लेस हमें अवेलेबल है वहाँ पे खेला जा सकता है, उसे ही हम माइनर गेम कहते हैं। जैसे ये गेम में हमें ऐसा पर्टिकुलर कोई ओपन फील्ड ग्राउंड नहीं चाहिए या प्ले ग्राउंड नहीं चाहिए या पर्टिकुलर ऐसा कोई प्लेस जो ये गेम के लिए चाहिए, वैसे कोई कुछ भी प्रॉब्लम ये गेम में नहीं रहता है। ये गेम हम कहीं पे भी खेल सकते हैं। जैसे हम कोई गार्डन में खेल सकते हैं या कोई छोटा सा ग्राउंड है उसमें खेल सकते हैं या कोई रूम में खेल सकते हैं घर के अंदर। तो ये गेम हम कहीं पे भी खेल सकते हैं, उससे ही हम माइनर गेम खेलते हैं। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दिया है, माइनर गेम्स आर दोस विच रिक्वायर मिनिमल स्पोर्ट इक्विपमेंट। यहाँ पे स्पोर्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत है। जैसे अगर हम थ्रो बॉल खेलते हैं तो यहाँ पे बॉल की ज़रूरत है। अगर हम डिस्कस थ्रो खेल रहे हैं फ्रिस्बी जैसे, तो वहाँ पे हमें फ्रिस्बी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट की ज़रूरत है एंड कैन बी प्लेड ऑलमोस्ट एनीवेयर। और इस प्रकार के गेम हम कहीं भी खेल सकते हैं, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे खेल सकते हैं। एंड दिस गेम डू नॉट नीड अ फॉर्मल प्लेग्राउंड और एनी कंडीशन। ये जो गेम्स है यहाँ, इसको हमें ऐसा पर्टिकुलर ग्राउंड या पर्टिकुलर फील्ड या कोई कंडीशन रहेगी, यानी नहीं आपको ये गेम यहाँ पे ही खेलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गेम हम कहीं पे भी खेल सकते हैं, उसे ही हम माइनर गेम कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर उन्होंने दिया है किकिंग द बॉल। किकिंग द बॉल ये गेम या तो हम सिंगल्स में भी खेल सकते हैं, या तो हम पैर्स में भी खेल सकते हैं, या तो हम ग्रुप में भी खेल सकते हैं। तो ये जो गेम है ये हम कहीं पे भी खेल सकते हैं। अगर हम सिंगल में खेल रहे हैं तो हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं, अगर हम पैर में खेल रहे हैं तो घर के अंदर या किसी कोने में या किसी गली में या किसी जगह पे भी खेल सकते हैं। जहाँ पे हमें जो जगह अवेलेबल मिलेगी वहाँ पे हम ये गेम खेल सकते हैं। तो ये गेम हम ग्रुप में भी खेल सकते हैं, सिंगल्स में भी खेल सकते हैं और पैर्स में भी खेल सकते हैं। ये गेम में हमें बॉल की ज़रूरत है। किकिंग द बॉल ये गेम में हमें कौन से प्रॉप की ज़रूरत है? बॉल की ज़रूरत है। तो फिर वो कौन सा भी बॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, नॉर्मल बॉल, थ्रो बॉल, जो भी बॉल आपके पास है अवेलेबल वो बॉल से आप खेल सकते हो। तो ये गेम आप सिंगल में भी खेल सकते हो, पैर्स में भी खेल सकते हो या ग्रुप में भी खेल सकते हो। ये गेम का नाम है किकिंग द बॉल। जैसे पिक्चर्स में आपको दिख रहा है, एक लड़का सिंगल खेल रहा है बॉल के साथ और सेकेंड पिक्चर में यहाँ पे ग्रुप में खेल रहे। सो आप कोई भी प्रकार से खेल सकते हैं। ओके, नाउ उसके नीचे सेकंड पिक्चर दिया है फिस्बी थ्रोइंग एंड कैचिंग। तो फिस्बी थ्रोइंग एंड कैचिंग आप रूम में भी खेल सकते हो। यहाँ पे खाली 2 जन या चाहिए या 2 से ज़्यादा जन, और यहाँ पे हमें दूसरे जन के पास थ्रो करना है। जो फ्रिस्बी है, सर्कल टाइप रहता है फ्रिस्बी, वो हमें दूसरे पार्टनर को थ्रो करना है और वो कैच करने वाला। तो ये गेम हम कहीं पे भी खेल सकते हैं, जो भी जगह हमें अवेलेबल है वो जगह पे हम खेल सकते हैं। फिर वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, ओपन ग्राउंड में हो, छोटी जगह हो, कहीं पे भी वो गेम हम खेल सकते हैं। और ये फ्रिस्बी थ्रोइंग एंड कैचिंग गेम में हमें क्या, कौन सी
चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमें फ्रिस्बी की ज़रूरत है। थ्रो करने के लिए जो फ्रिस्बी रहता है सर्कल शेप में रहते हैं उसकी ज़रूरत है। तो ये पार्टनर गेम में खेल सकते हैं या ग्रुप में भी खेल सकते हैं, पर ये सिंगल में नहीं खेल सकते क्योंकि यहाँ पे सामने वाला जो प्लेयर है उनको कैच भी करना है और एक जन को थ्रो भी करना है। तो ये पैर में या ग्रुप में भी खेला जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज रिंग फुटबॉल। रिंग फुटबॉल यानी ये गेम हमें रिंग के अंदर डालना है, तो हम हमारे रूम में या हमारे घर के अंदर भी एक रिंग लगा के उसके अंदर बॉल डाल सकते हैं। तो ये गेम भी हम सिंगल भी खेल सकते हैं, पैर में भी खेल सकते हैं या ग्रुप में भी खेल सकते हैं। तो ये गेम में हमें कौन सी प्रॉप की ज़रूरत है, तो ये गेम में हमें बॉल की, तो कोई भी बॉल आप यूज़ कर सकते हो जो बॉल आपको रिंग में थ्रो करना है। तो ये गेम आप कहीं पे भी खेल सकते हो, जो भी जगह आपके लिए अवेलेबल है आप उधर खेल सकते हो। सो दिस इज़ द गेम दैट इज़ रिंग फुटबॉल। आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये ग्रुप में गेम खेला जा रहा है जहाँ पे 3 लड़के खेल रहे हैं और वो घर के अंदर खेल रहे हैं। आपको दिख रहा है, यस विंडो दिख रहा है। तो ये गेम वो घर के अंदर खेल रहे हैं, तो उन्होंने बॉल का इस्तेमाल किया है। सो दिस इज रिंग फुटबॉल गेम। सो in minor game we have saw 3 types of games. First was kicking the ball, second was frisbee throwing and catching, and third was ring football. Okay, now students, on page number 69 there is an activity given where one question is been asked, that is which game or race would you like to participate during your sport day. तो जब आपके स्कूल में स्पोर्ट डे हो रहता है तभी आपको कौन सा रेस गेम या कौन सा ग्रुप गेम आपको खेलना पसंद है। तो यहाँ पे आपको 2 गेम्स का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रनिंग रेस एंड क्रिकेट गेम। रनिंग रेस और क्रिकेट गेम आई लाइक टू पार्टिसिपेट ड्यूरिंग स्पोर्ट डे। तो मुझे कौन सा गेम पसंद है वो मैंने लिखा। आपको आपका पसंदीदा गेम आपको वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रनिंग रेस एंड क्रिकेट गेम आई लाइक टू पार्टिसिपेट ड्यूरिंग स्पोर्ट डे। सो आपको ये कंप्लीट करना है आपके ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 69 पे। अब उसके नीचे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मेक योर ओन माइनर गेम एंड सजेस्ट इट अ नेम। तो यहाँ पे आपको कोई भी आपका खुद का माइनर गेम सजेस्ट करना है। तो ये पर्सनल आंसर है, तो ये आपको लिखना नहीं है, आपको खुद को थिंक करना है। तो जैसे खुद का माइनर गेम अगर डिस्कस करेंगे तो मैं थ्रो बॉल डिस्कस करूंगी, जहाँ पे बॉल को थ्रो करना है और दूसरा पैर कैच करे। सो यहाँ पे आपको आंसर नहीं लिखना, आपको खाली डिस्कस करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स टर्न योर पेज नंबर 70 ऑफ योर ईवीएस कंबाइंड बुक। अभी ईवीएस कंबाइंड बुक का पेज नंबर 70 खोलो। सो नाउ देयर इट इज टोल्ड दैट थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, नेम योर फेवरेट गेम एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ देयर प्रॉप। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका फेवरेट गेम कौन सा है वो लिखना है। जो भी आपका फेवरेट गेम है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने मेरा फेवरेट गेम कौन सी लिखा है, माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। तो मैंने मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट लिखा है। जो आपका फेवरेट है वो आपको लिखना है। तो आपको वहाँ पे नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा है माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट, और उसके नीचे उन्होंने एक्टिविटी दिया है, उन्होंने लिखा है माय फेवरेट गेम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको जो आपका फेवरेट गेम है उसका नाम लिखना है, जिस प्रकार मैंने लिखा है क्रिकेट, CRICKET। और फिर उसके नीचे जो प्रॉप्स, जो सामग्री, जो थिंग्स हम क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ करते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सा थिंग हम यूज़ करते हैं, यस तो क्रिकेट खेलने के लिए हम बैट और बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैट और बॉल का डायग्राम ड्रॉ किया है और उसको कलर किया और उसको नेम भी किया है। तो मैंने क्या किया है, बैट का डायग्राम ड्रॉ किया है, उसको कलर किया और उसका नाम लिखा बैट। फिर बॉल का डायग्राम निकाला, उसको कलर किया और उसका नाम लिखा बॉल। तो यहाँ पे मैंने मेरा फेवरेट गेम जो है उसका नाम लिखा और वो ड्रॉ किया, उसका प्रॉप्स ड्रॉ किया। तो आपको क्या करना है, जो आपका फेवरेट गेम है उसका नाम लिखना है और उसमें जो प्रॉप यूज़ करते हैं वो प्रॉप्स आपको ड्रॉ करें। तो ये पर्सनल क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैंने अपने हिसाब से लिखा है। तो आपको आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक का पेज नंबर 70 कंप्लीट करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ स्टूडेंट लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन टुडेस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स इन टुडेस लेक्चर वी हैव सॉ 2 टॉपिक्स। आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स पढ़े। फर्स्ट वॉज रेस एंड सेकेंड वॉज माइनर गेम। रेस में हमने अ कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टूडेंट्स जजिंग हु इज फास्टर ये देखा। फिर हमने 4 रेस के टॉपिक्स देखे। फर्स्ट वॉज स्कीपिंग, सेकेंड वन वॉज रनिंग बैकवर्ड, थर्ड वन वॉज फास्ट वॉक एंड फोर्थ वन वॉज डक वॉक। उसके बाद हमने माइनर गेम्स देखा। माइनर गेम्स आर दोज विच रिक्वायर मिनिमम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड कैन बी प्लेड एनीवेयर। दिस गेम डू नॉट नीड अ फॉर्मल प्लेग्राउंड और कंडीशन। उसमें हमने फर्स्ट देखा किकिंग द बॉल,
सेकेंड हमने देखा फिस्बी थ्रोइंग एंड कैचिंग, और थर्ड हमने देखा रिंग फुटबॉल। देन हमने वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर किया, विच गेम और रेस वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्यूरिंग योर स्पोर्ट डे। सो यहाँ पे मैंने आंसर क्या लिखा, रनिंग रेस एंड क्रिकेट गेम आई लाइक टू पार्टिसिपेट ड्यूरिंग स्पोर्ट डे। फिर उसके बाद पेज नंबर 70 पे उन्होंने हमें और एक क्वेश्चन पूछा था, दैट वॉज नेम योर फेवरेट गेम एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ देयर प्रॉप्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा था माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट, और फिर मैंने जो नीचे बॉक्स दिया था वहाँ पे मेरा जो फेवरेट गेम है क्रिकेट, उसका नाम और जो वस्तु जो प्रॉप्स हम क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बैट एंड बॉल, तो वो बैट एंड बॉल ड्रॉ किया, उसको कलर किया और उसका नाम लिखा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड today's lecture. So today we have saw about race and minor games. Okay. Now student, it's the homework time. तो अभी आपका homework time. So what is your homework? So the homework is you will complete your EVS combined book page number 69. तो आपका EVS combined book का पेज नंबर 69 जो क्वेश्चन पूछा था वो आपको लिखना है, विच गेम्स और रेस वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्यूरिंग योर स्पोर्ट डे। सो यू हैव टू राइट दिस, रनिंग रेस एंड क्रिकेट गेम आई लाइक टू पार्टिसिपेट ड्यूरिंग स्पोर्ट डे। तो आप ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आपका ओन भी लिख सकते हो। तो आपको आपके ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 69 पे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 70 पे आ जाओ। फिर यहाँ पे भी जो पूछा है क्वेश्चन, नेम योर फेवरेट गेम एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ देयर प्रॉप्स। सो माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और उसके नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें आपका जो गेम है फेवरेट गेम, उसका नाम, जैसे मैंने क्रिकेट लिखा है, और यहाँ पे जो क्रिकेट के लिए प्रॉप्स यूज़ किए जाती है जैसे बैट एंड बॉल, तो वो बैट एंड बॉल ड्रॉ किया है, उसको कलर किया है और उसका नाम लिखा है। तो सेम वे आपको भी करना है पेज नंबर 70। तो आपको आपका ईवीएस कंबाइंड बुक का पेज नंबर 69 और पेज नंबर 70 कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको इसका फोटो खींचना है, दोनों पेज का फोटो खींचना है। दोनों पेज का फोटो खींचने के बाद आपको वो मुझे भेजना है। सो दिस इज योर होमवर्क। सो एवरी स्टूडेंट विल डू दिस होमवर्क। सो सब बच्चे ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों पेजेस का फोटो निकालना है और मुझे भेजना है। सो आई होप यू विल कंप्लीट इट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।